So students, now we will discuss about the actual cycle which takes place in the two cell which we have mentioned in previous class. We have discussed, that is your mesophyll cell and bundle sheath cell. So see for cycle, actual cycle or actual pathway. Suppose this is your mesophyll cell, clear, which is present near the surface of leaf below epidermis, and let's say this is your bundle sheath cell which is found around the xylem and phloem, which are tightly packed. These cells are tightly packed with each other. So this is one of the bundle sheath cell, clear, and say this is your mesophyll cell, clear. So what happens actually, and above this you have epidermis, clear. Let's say this is stomata. In fact, stomata is present in your lower epidermis, and you have to imagine by inverting the direction of epidermis, clear. In fact, this should be in this side, but due to for our easy study, for your convenience of understanding, we are just inverting the position. Okay. So here what will happen? The carbon dioxide will enter through stomata. When stomata will open, what will happen? The carbon dioxide will enter. Clear? Carbon dioxide will enter. How? देखो आमको कौन करते हो छुआ ना बंडल sheath cell एनी हाउ कौन करने पड़ो C3 साइकिल करते हो, क्लियर. तो आम कहते बाहर कनसेंट्रेशन ऑक्सीजन अधिक अच्छी ताने नुहे जे कार्बन डाइऑक्साइड कनसेंट्रेशन टोटाल नथिबो, हाँ कि नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड कौन एनवायरनमेंट पूरा हजि जाइथिबो ना कौन ना, कनसेंट्रेशन अधिक अच्छी. मन रखिथ C4 प्लांट जो मैंने C4 साइकिल करती, C4 प्लांट माने से जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड एवेलेबल थाए जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर से माने ताकू फुल्ली यूटिलाइज कर क्षमता रखते हैं. माने से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर क्षमता C3 प्लांट मान बहु गुण रे अधिका, बुझिपाल. दे कैन मैक्सिमाइज द यूज ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. जदि 10 ग्राम आम कार्बन डाइऑक्साइड दबा C3 प्लांट को आउटे दबा 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड C4 प्लांट को, तो सेटा मैक्सिमम यूज कर C4 प्लांट. तापाखे सी मॉडिफिकेशन अच्छी सेमती है, तो ताकू जेहेतु सी अल्प कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ले भी दैट इज यूज टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. ओके. सो फोटोसिंथेसिस कैन टेक्स प्लेस इन बोथ ऑक्सीजन प्रेजेंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड in presence of carbon dioxide, clear. So here also there will be some carbon dioxide concentration, and it will want to maximize the use of that much of carbon dioxide, clear. What will be available to the C4 plant, clear. So when C2 will enter the mesophyll cell, it will bind with water, because water is present in mesophyll cell. Water is present in every cell, and it will form H2CO3 bicarbonate ion, and in this process an enzyme will act which is anhydrase, carbonic anhydrase. You may say the carbonic anhydrase. I am writing it in short, anhydrase enzyme. That enzyme what will do? Just it will add the water molecule with carbon dioxide and will form bicarbonate ion, clear. H2CO3. Now H2CO3 what will do? It will split into H plus and SCO3 minus, clear. And now this SU3 minus ion, this ion actually holds the carbon dioxide in itself. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड या देखी पार्छ ना नहीं, या भितर एक्चुअली CO2 थी, CO3 अच्छी मैंने ओबियसली CO2 अच्छी या भितर, हाँ ना नहीं. तो कार्बन डाइऑक्साइडटा एक्चुअली मेसोफिल सेल भितर
र मटेरियल रूप में मिलनी तुमको CO2 कौटी ब्लैंक बा प्योर CO2 मिलनी से कौ रूप में मिल SU3 रूप में मिल सो दिस SU3 which have carbon dioxide in itself will accepted by PEP phosphoenol pyruvate that is phosphoenol pyruvate clear phosphoenol pyruvate so टिके बड़ करुँच छुआटा जगह सर्ट हो and PEP after adding with phosphoenol pyruvate what will be formed that is your oxaloacetic acid and you have to remember that this is a 3 carbon containing compound and this is a 1 carbon containing compound so it will be the 4 carbon containing compound. Is it clear? Yes or no? This is your oxalic acetic acid. Then after oxalic acetic acid the oxalic acetic acid may be converted into malic acid. This is number 1. Also it may be converted into aspartic acid. So there is 2 chances, either oxaloacetic acid changes into aspartic acid in this step, aspartic acid with the help of addition of ammonium. Okay, so this is possibility, one possibility, or which is generally happens oxaloacetic acid normally get converted into its isomer that is malic acid. So both there is both chances, maybe it may be converted into malic acid, it may be converted into aspartic acid. So basically normally it gets converted into malic acid, but we can't deny that there will be no oxalic acid will be converted into aspartic. There is very much chance of getting converted into also aspartic acid as well as malic acid. Clear? So either it will be converted into malic acid or aspartic acid. After converting into malic acid, what will we found to see that the malic acid simply enter the bundle sheath cell. So here malic acid enter. Now so let's see here, in malic acid also there are present CO2 because this CO2 which is accepted by PEP was present in oxaloacetic, was present in malic acid. Also here we will found in malic acid the CO2 which was accepted by PEP and get converted into different substrates also will be present in malic acid, because in next steps where it is in next step एठी कोउटी भी देखो next step रे कोन हेनी in no places it the carbon dioxide release in this cycle हला एठी ऐड हला परे कोनोसी भी स्टेप रे देखो carbon dioxide release in that means the CO2 which was absorbed in form of SU3 is also present in malic acid. So now what will happen, the malic acid will again converted into pyruvic acid. Malic acid inside the bundle sheath cell get converted into pyruvic acid, and in this step the carbon dioxide will be released in the bundle sheath cell. है जो कार्बन डाइऑक्साइड टा थिला मालिक एसिड भितर तो मालिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करदेला कौन रहा बाकी पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टा तुमको मिलला ये कार्बन डाइऑक्साइड की किए एक्सेप्ट करिवो ना RUBP। बर्तमान देख C3 साइकिल हम कौटी हो बर्तमान यहाँ बंडल शीथ भितर हो तुम कही सेंटर में रहा बंडल शीथ जाइलम भितर तो सेठी हम लाइट रिएक्शन एटी हो मेजोफिल सेल एटी हो से विषय में जानवा दरकार ना आम मेन हूँ C3 साइकिलटा शिफ्ट हो गला मेजोफिल सेल बुझिपार तो ये CO2 है एटी कहीं तुम भावी ये सर कहीं RUBP एक्सेप्ट कलानी CO2 को कारण हूँ छुआ CO2 कनसेंट्रेशन अधिका ना बुझिपार ना नहीं सी बहुत गुड़ा आकुमुलेट कलापर सी जो बहुत आसब बंडल शीथ सेल को से जगह हम तो RUBP ये बर्तमान इजिली एक्सेप्ट कर CO2 को तापर CO2 को कलापर तार जो तुम C3 साइकिल पड़ी 3PGA हम 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम हाँ कि नहीं सेठू पुणी 6टा मॉलिक्यूल 5टा आगू को जीव गोटे बाहरी जीव तापर पुणी RUBP रिजेनेरेशन हम जमी ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिजेनेरेशन तो ये से सब प्रोसेस हम ये जगह तो C3 साइकिल ये कंप्लीट हम ग्लूकोज भी तैयारी हम किंतु मन रखिए ये गोटे RUBP सहित गोटे कार्बन डाइऑक्साइड हम ताने गोटे ग्लूकोज तैयारी करने C4 प्लांट को 6 थर ये साइकिलटा करते हम ये
छटा मलिक्यूल एकाथरे जाऊनी ये नेचर ना नेचर गोटे गोटे हुए हाँ ना नहीं गोटे आरबीपी सहित गोटे कार्बन डाइऑक्साइड हम है तो ये 6 थर C4 साइकिल करते हम गोटे ग्लूकोज तैयार करने है तो बर्तमान आमको मिलला कौन छ पायरुविक एसिड मिली कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी कार्बन डाइऑक्साइड तर नेक्स्ट C3 साइकिल कला पायरुविक एसिड पुणी अगेन पलैब कौटी एठिकी आम मेजोफिल सेल को तो पायरुविक एसिड ये था फॉस्फोइनल पायरुवेट माने फॉस्फोइनल पायरुवेट माने पायरुविक एसिड एठी भी पायरुविक एसिड बट एटा फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड को आम पायरुवेट कहते है तो ये है पायरुविक एसिड ये भी है फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड दैट मीन्स या पाखे एटा है पायरुविक एसिड एटी जब आम गोटे फॉस्फेट ग्रुप लगेदेवा तो सी जो फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड ता माने ए जगह कौन हम दुईटा एटीपी एड हो कारण फॉस्फेट ग्रुप ये दरकार तार आउ दुईटा एटीपी बाहर जाओ क्लियर तो पायरुविक एसिड थिला फॉस्फेट ग्रुप एड है दुईटा एटीपी डोनेट कले तो फॉस्फेट एड होगा सी होगा कौन फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड बा फॉस्फोइनल पायरुवेट दैट इज फॉस्फोइनल पायरुवेट क्लियर तो पायरुविक फॉस्फोइनल पायरुवेट बा पीपी कौन है रिजेनेरेट होगा तो सी पुणी जो SU3 आसब या पुणी सी एक्सेप्ट कर पुणी जीव प्रोसेस चलो सी कंटिन्यू कर तो रिजेनेरेशन होगा निहाती जरूरी आउ ये मन रखिए गोटे एंजाइम काम करे ता हूँ पेप्को फॉस्फोइनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है पेप्को एंजाइम पेप्रु पेप्को आसी तो ये कौन करे ना ये गोटे काम करे तो देखी पाल छुआ तो बर्तमान ये एनर्जी केते दरकार हो देख एनर्जी केते देख आम जानी C3 साइकिल केतटा एटीपी दरकार 18टा एटीपी कारण 6 3 9 × 2 मन पका C3 साइकिल केमी होता गोटे साइकिल आम जो करते आगुरी C3 साइकिल 6टा गोटे जगह यूज होता एटीपी आ गोटे जगह 3टा 6 3 9 आम कहते 2 थर हम सेमती साइकिल 9 दूनी 18टा दरकार होता तो ये भी 6 थर जो हम है टोटाल C3 साइकिल केतटा दरकार हम C3 साइकिल हूँ माने गोटे ग्लूकोज तैयार करने C3 साइकिल 18टा एटीपी दरकार तो मुझे कहली गोटे ग्लूकोज सिंथेसाइज करने को 6 थर C4 प्लांट को करते हम C4 साइकिल तो जब गोटे थर 2टा एटीपी दरकार एटा तो एक्सट्रा रहा C4 साइकिल मन रखी था C3 प्लांट रे केवल C3 साइकिल हम किंतु C4 प्लांट रे C3 भी हम प्लस C4 भी हम C4 कहीं कहते कहना ये जो फास्ट प्रोडक्ट तैयारी होना C4 साइकिल सी हूँ ऑक्जालिक एसिड आउ एटा 4 कार्बन कंपाउंड से C4 कहूँ ए साइकिलटा फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची ऑक्जाल लो एसिडिक एसिड तो से ये हूँ 4 कार्बन कंपाउंड से ये पूरा साइकिलटा C4 साइकिल तो सेठी C4 साइकिल खाली एका होनी C4 प्लांट C3 भी होची C4 होची C3 पाई आमे केते आगुर पढ़ी सारछंती 18टा एटीपी दरकार जो माने पढ़ी न लास्ट वीडियो देखो न नोट भी देखि परिबो अछि सेठी प्लस C4 पाई केतना दरकार प्रति थर C4 रे 2टा दरकार तो कहले 6 थर साइकिल हबो गुटे ग्लूकोज पाई 6टा साइकिल दरकार C4 साइकिल फॉर 1 ग्लूकोज गोटे ग्लूकोज को तैयार करने हेले यही साइकिल केते थर हम × 6 माने 6टा साइकिल हम गोटे थर जदि 2टा हो 6टा साइकिल केतना दरकार हम 12टा तो 18टा तो ऑलरेडी हम प्लस ता सहित 12टा एटीपी दरकार हम टोटाल केते गला 30टा एटीपी गोटे C4 प्लांट पाई गोटे ग्लूकोज तैयार करने केतना दरकार हो 30टा किंतु मन पकाओ C3 प्लांट पाई गोटे C3 प्लांट रे गोटे ग्लूकोज तैयारी करने केतना दरकार है 18टा एटा खाली C3 रे 18टा C4 रे 2टा ना मिसी होची हला ये हला 18टा एटीपी तो कोटा रे बेसी एनर्जी दरकार होची 30टा जोटा सेटा ओबियसली अधिक दरकार होची माने C+4 प्लांट कोन करे ना एनर्जी कंज्यूम अधिक करे कारण 30टा एटीपी 12टा एटीपी अधिक पड़ुची 30टा एटीपी फिर भी दिस इज ए यूजफुल प्रोसेस यूजफुल स्टेप फॉर C4 प्लांट तथापि एनर्जी यूज करा पर भी एटा प्लांट पे भलो कारण से फटर रेस्पिरेशन एटलिस्ट करूनी बुझिपाल ना नहीं तो हाई कनसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर या पर किसी एफेक्ट पकौनी फटर रेस्पिरेशन है गोटे हार्मफुल प्रोसेस है जहाँ भी तोर कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी तो ताको ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करदेव प्लांट जदि फटर रेस्पिरेशन है C2 साइकिल कला है तो फटर रेस्पिरेशन को लॉस करने सी किसी एटीपी भी अधिक खर्च पर राजी अच्छे किए C4 साइकिल बुझिपार ना नहीं सो दिस इज योर C4 साइकिल so in this class this is enough also you have to remember this energy calculation ATP requirement okay so in next class we will discuss about what are the factors affecting photosynthesis and that will be the last class for this chapter thank you